Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we'll start our lesson from our book First Flight, okay? And that is Glimpses of India Part 3, Tea from Assam, Chapter 7 by Arup Kumar Datta. We will just start this lesson today, okay? Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रांजल जो है ये आसाम से है और राजवीर का क्लासमेट है, दिल्ली में पढ़ता है, ठीक है। और प्रांजल के जो फादर है वो मैनेजर है टी गार्डन में, क्लियर। तो प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को कहाँ पर कि समर वेकेशन में आकर के ये इस जगह को देख ले, घूम ले, इंजॉय कर ले। इन दिस लेसन वी विल जस्ट सी अबाउट द टी फ्रॉम आसाम। जैसा कि आपका टाइटल क्लियर कर रहा है कि जो टी है, टी और आसाम का जो कॉम्बिनेशन है हम वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। इट इज़ अबाउट टी प्लांटेशन, एक्चुअली इट इज़ अबाउट द टी प्लांटेशन इन आसाम। चाय गरम, लेसन स्टार्ट होता है। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर called out in a high pitched voice. He came up to their window and asked, चाय साहब, give us 2 cups, प्रांजल said. तो ये लोग ट्रेन में है, बाहर से चाय गरम की आवाज़ आ रही है। एक वेंडर मीन्स सेलर जो है आके कहता है अपनी ऊंची आवाज़ में चाय। तो वो जो है विंडो के पास आते हैं और पूछता है साहब चाय। तो वो कहता है प्रांजल की 2 कप दे दो। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उन्होंने सिप लिया, सिप मतलब उस चाय को पिया, घूट लिया उसका। गर्म चाय थी, लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में रहती चाय। हर कोई उस कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था। एवरीवन वाज जस्ट हैविंग द टी इन दैट कंपार्टमेंट। Do you know that over 80 crores cup of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. And Rajveer said about the importance of tea, that 80 crore cups of tea are drunk every day. View exclaimed, cry out suddenly in surprise. View exclaimed. Okay, it means he cried out suddenly in surprise. Pranjal आश्चर्य में आता है. Tea really is very popular. The train pulled out of the station. फिर ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ जाती है. Pranjal buried his nose in his detective book again. Pranjal is interested to read his book. Okay, Rajveer too was an ardent. Ardent means very enthusiastic or passionate. Ardent means very enthusiastic and passionate. This is the word ardent and this is the meaning. Okay. Ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful sceneries. Keener means here a person who is extremely eager. A person who is extremely eager. Then what does he say? That he is interested to look at the outside, the beautiful sceneries. Okay. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रांजल इज इंटरेस्टेड इन हिज डिटेक्टिव बुक because that book is important for him. He is more interested in that book because he has seen the outside environment many times. But Rajveer is not interested in now detective book because he has come here first time and he is interested in outside environment. Although he is interested in detective book, but the scene outside is more tempting than detective book. Clear? It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Okay, everywhere there is greenery, and Rajveer had never seen so much greenery. He is much more interested in outside world. Okay, then the soft green paddy fields gave way to tea bushes, and then he has seen that there is the soft green paddy. Paddy means field with rice is grown, जहाँ पे राइस है, ठीक है। गिव अवे टू अ टी बशेस, जहाँ पर वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पूरा एरिया है जहाँ पर आपका पैडी के गार्डन है, टी बशेस भी है, टी की झाड़ियाँ भी है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे राजवीर अब देख रहा है। इज मच मोर इंटरेस्टेड, एक्चुअली एवरीथिंग इज टेम्पटिंग फॉर हिम। हर चीज़ उसको ललचाने वाली, बिकॉज ही इज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. It was a magnificent means magnificent. The word magnificent here
This is the word magnificent. It means extremely beautiful, elaborate, or impressive. Clear? View, again the backdrop of dazzling wooden hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. अभी देखता है कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सीनरी इम्प्रेसिव व्यूज जो है वो देख सकता है. एवरीवेयर देयर इज इम्प्रेसिव एंड extremely beautiful view. There was against the backdrop of dazzling wooden hills. और उस वहां पर जो आपकी वुडेड हिल्स है, ठीक है, जो कि आपकी वहां पर जो हिल्स है, जो पहाड़, जो भी एरिया है वहां पर, वहां पे देख सकता है कि टी बशेज हैं, टी की जो है चाय जो जिससे हम चाय की पत्ती बनाते हैं, वो झाड़ियां देख सकता है जो दूर तक फैली हुई है, जहां तक हमारी आईज जा सकती है. फिर इसके बाद देख सकते हैं आप, हियर यू कैन सी नाउ, dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shades trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अभी बता रहे हैं ड्राफिंग कॉज टू सीम स्मॉल आर इनसिग्निफिकेंट और इन कंपैरिजन, यानी कि छोटा दिखना, शॉर्ट में दिखना. द टीनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी. स्टडी मीन्स हियर, स्टडी मीन्स स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट, स्ट्रॉन्ग तरीके से बनी हुई. ठीक है. फिर आप देख सकते हैं शेड ट्रीज एंड एमेडिस्ट. एमेडिस्ट मीन्स क्या होता है आपका वर्ड एमेडिस्ट, हियर यू कैन सी एमेडिस्ट सराउंडेड बाय द ऑर्डरली रोज ऑफ बशी बीजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स. तो यानी कि ये जो छोटे छोटे आपके जो आपके टी बशेज है ये वहाँ पर लगे हुए हैं, और जो इनसे बड़े जो है मजबूत तरीके से, जो स्ट्रॉन्ग तरीके से जो बने हुए पेड़ हैं या बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, उनके सामने ये छोटे छोटे जो है डॉल की तरह एक ऑर्डर में मूव करते हुए दिख रहे हैं. यानी कि सीन जो है ना बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ब्यूटीफुल है. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कि डिस्टेंस पे वहाँ पर एक बिल्डिंग है. He could see that there was a building that is ugly building because there was some kind of smoke. Okay, billowing means billowing. This is the word billowing, moving or following to outwards with an undulating motion. ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अनजुलेटिंग मोशंस के साथ जो भी आपका स्मोक है वो निकल रहा है. ठीक है, तो वो थोड़ा सा ऑड लुक दे रहा है, अच्छा नहीं है. दैट इज नॉट मीन्स दैट डजंट सीम गुड. आउट ऑफ, और जो है लंबी लंबी चिमनी से, चिमनी यू कैन अंडरस्टैंड, अ पाइप विच कंडक्ट्स स्मोक अप फ्रॉम अ फर्नेस थ्रू द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. यू कैन सी द इन पिक्चर ऑल्सो. It is the picture of this, you can see as, okay, this is, and this is the meaning you can see here, chimneys means. Okay, now, hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. After observing everything he was excited, Rajveer, and he cried in that manner that, hey, a tree garden. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. Pranjal is actually habitual. He is habitual of observing each and every kind of thing there. Okay, and that is why he was not interested to share the excitement with Rajveer. वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है राजवीर के साथ. ठीक है, राजवीर एंजॉय कर रहा है, उसे करने दो, वो अपनी डिटेक्टिव बुक में है. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अभी कह रहे हैं कि ये जो है ट्री कंट्री है, ठीक है, और आसाम जो है वो लार्जेस्ट एरिया है इसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है वर्ल्ड में. और अब तुम देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे गार्डन्स हैं. ठीक है ना, यू मीन्स काफ़ी सारा एरिया जो आप देख सकते हो वो ट्री प्लांटेशन से रिलेट करता है. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड. राजवीर ने कहा कि मैं जो हूँ चाय के बारे में पढ़ रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता हूँ. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स. अब ये कह रहा है कि जो है कोई नहीं जानता कि जो है टी के बारे में कि कैसे ये डिस्कवर हुई, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स. लेजेंड्स मीन्स हियर टेल्स, स्टोरीज. ओके, What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor. फिर वो पूछता है कि कैसे लेजेंड है, तो वो रिस्पॉन्स क्या मिलता है कि एक चाइनीज एम्परर था. चाइनीज एम्परर ही है, अ सवर्जियन रूलर ऑफ एन एम्पायर.
एम्परर मीन्स मतलब सम्राट होता है वैसे, who always boiled water before drinking it. He was habitual to have water, boiling water, to have boiling water. He was habitual to have boiling water, and he always did the thing. What thing? Boiled and then take. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. फिर क्या होता है? द स्टोरी इज, क्या है चाइनीज एम्परर की स्टोरी कि एक बार एक जो है ना फ्यू लीव्स जो है ना ट्विंग से, जो ट्विंग मीन्स अ वुडन, ट्विंग मीन्स हियर अ वुडन शूट ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. ओके, तो ट्विंग टहनी के ऊपर कुछ पत्तियां थी वो गिर जाती हैं. क्लियर. बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, वो पॉट में जो है बॉयल होने लग जाती है, पानी में गिर के डिलीशियस फ्लेवर आता है. तब से कहा जाने लगता है कि दिस इज द टी लीफ. ओके. टेल मी अनदर स्कॉफ्ड मोकिंग वे प्रांजल, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. अब वो पूछता है कि अच्छा ठीक है दूसरी भी बताओ. प्रांजल जो है ये बात पूछता है, ठीक है, मजाक के वे में, मोकिंग वे में. ठीक है कि ठीक है दूसरी स्टोरी बताओ क्या है वो. तो ये क्या रिस्पॉन्स देता है ये, बौद्धि बौद्धि धर्म, an ancient Buddhist ascetic means saint. Here you can see the word ascetic, saint. Cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. The tea plants grew out of the eyelids. तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने जो है ना अपने जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे मेडिटेशन, ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना. ठीक है, तो वो जब किसी चीज अपने मतलब आध्यात्म की तरफ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे स्पिरिचुअल वे में, व्हेन ही वाज कंसंट्रेटिंग इन देमसेल्व्स, व्हेन दे वर कंसंट्रेटिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिज्म. ठीक है, तब क्या होता है कि दे फेल्ट स्लीपी एंड देन दे जस्ट कट देयर आईलिड्स एंड देन दैट ग्रू इन फॉर्म ऑफ टी प्लांट. जो आईलिड्स थी वो टी प्लांट के रूप में डेवलप हो जाती है. The leaves of these plants, when put in hot water and drank, banished sleep. Banished means here the word banished, you can see here banished, get rid of something that is unwanted. Banished मतलब गायब हो जाना होता है, तो get rid of something unwanted, जो चीज आपको पसंद नहीं उससे आपको मुक्ति मिलना. The leaves of these plants when put in hot water and drunk, जब आपकी इस तरह की जो लीव्स है वो हॉट वाटर में रखी जाती है और पी जाती है तो वो सारी जो आपकी जो नींद है वो गायब हो जाती है. तो इस तरीके से इसका भी यूज किया जाने लगा. टी वॉज ड्रंक फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवी रेड इट, एज फॉर बैक एज 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini, words such as chai and chini are from China, Chinese. अब ये बता रहे हैं कि टी जो है ना सबसे पहले चाइना में पी गई और ये यहाँ पर ही शुरू हुई थी. ठीक है, और फिर इस तरह से जो है चाइना से ही ये वर्ड्स आए हैं चाय और चीनी. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage, a drink other than water. beverage means एक तरह का ड्रिंक होता है. ठीक है, कोई भी जो पेय पदार्थ होते हैं जो कि पानी के अलावा होते हैं उसको हम बेवरेज में काउंट करते हैं. It is a very means new word, you can see, you can use it everywhere in restaurant like. Okay, beverage. तो टी जो है ये यूरोप में, टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century और वहां पर ये एक मेडिसिन की तरह, ड्रंक मोर एज मेडिसिन की तरह जो है ज्यादा इसको यूज किया जाता था. क्लियर. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू Marini Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब क्या होता है, ट्रेन क्लैटर्ड इज अ साउंड. ओके, मेक अ कंटिन्यूअस रैटलिंग साउंड. जब ट्रेन रुकती है या चलती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है क्लैटर्ड. ठीक है ना, मेक अ कंटिन्यूअस रैटलिंग साउंड. इनटू मरीनी जंक्शन, मरीनी जंक्शन पे जब ट्रेन रुकती है साउंड के साथ तो बॉय जो है अपना लगेज इकट्ठा करते हैं. पुश्ड देयर वे. अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बाहर निकल रहे हैं रास्ते के लिए. ठीक है ना, जब व्हेन दे वर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना, जब वो ट्रेन के बाहर आ रहे हैं तो आपका वर्ड यूज हो रहा है पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. दिस लाइन कैन बी यूज्ड एवरीवेयर व्हेन यू नीड टू यूज द सेंटेंस लाइक दिस कि मैं प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी या हम गए. You can use this kind of sentence that we pushed our way to the crowded platform like. Okay, and then
Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards soon sorry soon they were driving towards Dekhiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. अब ये देख सकते हैं आप देखियाबारी जो कि एक टी गार्डन है जो कि प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं, वहां पर ये जाते हैं, ठीक है, उस चीज को देखते हैं, उसके पेरेंट्स वहीं पे वेट कर रहे थे, उसको वहां देखते हैं, एंजॉय करते हैं। एन आवर लेटर द कार वेयर्ड ईयर मीन्स चेंज डायरेक्शन सडनली, अपना डायरेक्शन चेंज करती है कार। शार्पली ऑफ द मेन रोड की तरफ कार आ जाती है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबरी टी गार्डन, और वो जो है कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हुए उस टी गार्डन में आ जाते, उस टी स्टेट में आ जाते जहां वो घूमने के लिए interested थे। A bridge over a ditch consisting of parallel metal bars and allow vehicles to pass. This is what? A bridge, a kind of bridge, okay, that allowed vehicles to pass. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly purned to the same height. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, here he is explaining that when they were just moving towards the road, gravel road means unpaved road, were acres and acre. Here you can see that there were acres and acre tree bushes. There were many there were lots of tea bushes, okay, and means in a large area he can they could see, all neatly purned means trim a tree by cutting away overgrown bushes. You can see purned means trimming of trees जो कि ऊपर हमारे बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उनको ट्रिम करना। तो ये बहुत दूर तक देखे जा सकते थे, जो कि बहुत खूबसूरत दिखते थे और सेम हाइट के थे। क्लियर? ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. अब वहां पर देख सकते हैं कि काफी सारे टी प्लकर्स थे। टी प्लकर्स मीन्स जो हमारे टी लीव्स को प्लक कर रहे हैं, प्लक मीन्स तोड़ना, ओके। with bamboo basket, they have bamboo basket, they were just plucking the leaves, okay, and putting in their basket. They all had bamboo baskets, okay. They were plucking the tea leaves and they were putting it into the back side of their basket, wearing plastic aprons. They have the dress like plastic aprons. Plastic aprons means here you can see a protective garment from over the a protective garment over the front of one's clothes. A kind of protective garment they wore. वो पहने हुए थे एक प्रोटेक्टिव गारमेंट, उनके पीछे बम्बू बास्केट था और जिसके ऊपर वो जो है ना अपनी जो टी की लीव्स थी जो वो तोड़ रहे थे वो पीछे उसमें डाल रहे थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड मीन्स जो छोटे छोटे स्प्राउट्स निकले हैं, जो छोटे छोटे लीव्स हैं उनको पुट आउट मीन्स वो उनको पीछे डाल रहे थे। लीव्स मैंने पत्तियां, एज यू नो, ओके। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. फिर वहां जा रहे थे जब रास्ते में तो सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था, तो वो अपनी जो है अपनी गाड़ी को स्लो करते ताकि वो ट्रैक्टर जो कि ट्रेलर लोड लेके आ रहा था, टी लीव्स थी उसके ऊपर, तो वो क्रॉस हो सके। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर जो है पूछते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि ये सेकंड फ्लश मीन्स सेंड आउट फ्रेश शूट्स, ठीक है, तो ये सेकंड टर्म है या फिर स्प्राउटिंग पीरियड है, क्या ऐसा ही मिस्टर बरुआ? ठीक है, दिस इज द सेकंड फ्लश सेंड आउट फ्रेश शूट्स, तो कहता है हाँ ये सेकंड फ्लश है, ये स्प्राउटिंग पीरियड है। फिर ये आपका रिपीट हो गया, द सेकंड फ्लश और सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड मीन्स दैट द टी लीव्स आर प्लग्ड फॉर द सेकंड टाइम इन अ पर्टिकुलर हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, सेकंड फ्लश का क्या मीन्स हो गया कि ट्री लीव्स जो है वो सेकंड टाइम आपकी जो है यहाँ पर स्प्राउटिंग सीजन में सेकंड टाइम प्लग की जा रही है, तोड़ी जा रही है। क्लियर? हियर इज द मीनिंग, यू कैन सी हियर। नाउ it lasts from May to July and yields the best tea. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. अभी कह रहे हैं कि ये मई से जुलाई तक होती है, ठीक है, yield means प्रोड्यूस होती है बेस्ट टी, और आप तुम देख सकते हो you seem to have done your homework before coming, आने से पहले कि ऐसा लगता है कि तुमने अपना वर्क कर लिया है, प्रांजल के पापा कहते हैं आश्चर्य में।
Yes, Mr. Barwa. तो ये कहता है yes, Mr. Barwa. Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. फिर ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ मैं और ज़्यादा सीखूं क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ. This is the thing that if we are somewhere on a new place, on a new spot, then it is our duty to learn each and everything, whatever we are being given there. Okay. In this way, we can see that he is interested in all these things. Now, this is the lesson which I have just taught you. If you have any kind of problem in our next online class, we will just discuss the doubts. If you have, your homework is to write the summary and NCRT questions, and some extra questions also will be given you tomorrow in your online class. Okay, today you have to do only NCRT questions and summary. Clear? Okay, thank you, have a nice day.